بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ۔ شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا افریت بے قابو ہو چکا ہے۔ شہر قائد بے اندھیروں کا راج کہ الیکٹرک کے آگے سب بے بس نظر آنے لگے۔ شارٹ فال زیرو ہونے کے حکومتی دعووں کے برعکس لوڈ شیڈنگ عروج پر۔ گرم موسم میں طویل بندش عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھنے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ کوئی پرسان حال نہیں، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہونے لگیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ وزراء، عدالتی احکامات، سیاسی جماعتوں اور عوام کے احتجاج تک ہر تدبیر کے الیکٹرک کے آگے ناکام ہو چکی۔ اختر کالونی، کشمیر کالونی، محمودہ آباد، منظور کالونی، گجر چوک، پی ای سی ایچ سوسائٹی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، الہلال سوسائٹی، کے ڈی اے اسکیم 7، لیاقت آباد C1 ایریا، گلستان جوہر بلاک 19، گلستان جوہر بلاک 8، عزیز آباد، کریم آباد، صدر، آئی چندی گڑھ روڈ اور ملیر سمیت مختلف علاقوں میں رات سے بجلی کی فراہمی معطل ہے تو کہیں بجلی نے آنا اور جانا لگا رکھا ہے کہ الیکٹرک ان علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے جو مستثنی قرار دیے جا چکے ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کو قرنطینہ کیا گیا ہے۔ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا جس سے شہری پریشان ہیں۔ ملک بھر کی طرح محکمہ وابڈا کی جانب سے خانپور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 گھنٹے سے بجلی غائب ہے۔ شدید گرمی میں عوام بے حال ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وابڈا کی جانب سے اکثر اوقات اسی بے اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف کرونا کی وجہ سے کام کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں اور رہی صحیح کسر وابڈا کی جانب سے 7 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔ نعیم انور، نمائندہ سچ نیوز، خانپور۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے شہری پریشان ہیں۔ محمد اسحاق کی رپورٹ۔ کوٹدو شہر کے مختلف فیڈر پر لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ سٹی، داریا اور ٹیوبویل فیڈر پر 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ ایک فیڈر پر کام ہوتا ہے اور 4 فیڈر ایسے ہی بند کر دیے سے باہر آ گیا۔ سٹی، داریا اور ٹیوبویل فیڈر پر 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ ایک فیڈر پر کام ہوتا ہے اور 4 فیڈر ایسے ہی بند کر دیے جاتے ہیں جس سے بچوں اور مریضوں کا شدید گرمی میں گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کورونا کی وجہ سے ہمارے کاروبار نہیں، رہی صحیح کسر وابڈا نے لوڈ شیڈنگ سے پوری کر دی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، کاروبار متاثر ہیں، گھروں میں بچے بڑے بوڑھے سب پریشان ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، دن میں رات میں بھی۔ سٹی فیڈر تو اکثر ہی بند رہتا ہے، شہر میں بھی بند ہے، کاروبار متاثر ہے، بہت ہی پریشانی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے 3 دن کا لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے، 3 دن لاک ڈاؤن اور چوتھا پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ۔ جب شاپ پہ آتے ہیں تو حال آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم دکان کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے، کاروبار کر سکتے۔ تو برائے مہربانی ہم اس لوڈ شیڈنگ کا کچھ حل ڈھونڈے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں شہریوں کو ریلیف پہنچانے میں ناکام ہو گئیں۔ اس وقت ساہیوال سے ہمارے نمائندے احتشام علی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی احتشام علی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ساہیوال بازار میں اور ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال میں بھی مہنگائی کا زور و شور ہے، لیکن یہاں پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی اور ہر چیز کے دام جو ہیں وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم جی، ہم جناب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ نہ چینی مل رہی ہے نہ آٹا مل رہا ہے اور پٹرول یکدم 70 روپے سے انہوں نے 101 روپے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غریبوں کا خون چوسیں لیکن اتنا بھی نہ چوسیں کہ بالکل ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ نہ دالیں آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں اور گیہوں اور چینی یہ سب کچھ
सब्जियां इतनी महंगी हैं, आटा नहीं मिल रहा आवाम को, ठीक है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इतना गरीबों को ना मारें। ये कह रहे थे तब्दीली आ रही है, ये कौन सी तब्दीली लेके आ रहे हैं? ये कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं कि गरीबों को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा? प्लीज हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी गरीबों को मारे ना मकान मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, बिजली महंगी हो रही है। ये तो कह रहे थे बिजली भी देंगे, घर भी देंगे, मकान देंगे, खाने के लिए जरूरी अशिया देंगे, अब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी इनसे दरख्वास्त करते हैं। जी, जैसे कि इनका कहना है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस तरफ नज़र करें, नज़रसानी करें ताकि गरीबों का कोई भला हो सके। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई और दूसरे बारे में इनका क्या कहना है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई ने गरीब आदमी कमर तोड़ दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले गोश्त लेने आया हुआ था, उन्होंने 1000 रुपये रेट बताया, जबकि सरकारी रेट उसका 800 रुपये। अगर इन्हें कहा जाए कि कुछ मुनासिब कीमत कर ली जाए तो आगे से ये जवाब दिया जाता है कि जहाँ से मुनासिब कीमत मिलता है वहाँ से लिया जाए। अगर सब्ज़ी लेने जाएँ तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, हर चीज़ में जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। आलू, प्याज और टमाटर वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, चीनी, दालें, सब चीज़ें महंगी हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ रेट कम किए जाए, महंगाई कम की जाए ताकि कोई गरीब आदमी खाने पीने की कोई अशिया खरीद सके। जी बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ जो है वो ज़िलाई इंतज़ामिया जो है और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो भी काम करती दिखाई नहीं दे रही। जी शुक्रिया एहतशाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर किराए तो कम न हुए, कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा दिए, जिससे शहरी परेशान हैं। लिया से जहूर दुरानी की रिपोर्ट। कानून पर अमल दरामद न होने के सबब अवाम का वास्ता हर वक्त माफिया से पड़ा रहता है। जहां हमारे यहाँ माफिया इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो रियासत की रेट को हर जगह चैलेंज करते नजर आते हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी अब एक माफिया का रूप धार चुके हैं। नाजायज कराएं और शहरियों की जेबों पर डाका डालने से रियासत इनको रोकने में अब तक नाकाम नजर आती है। डीजल पेट्रोल के रेट जब कम हुए तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी न की गई, जबकि कीमतें बढ़ने पर किराए बढ़ाए जा रहे हैं। रियासत इनको नकेल डालने से कासिर है, क्योंकि बड़े बड़े सियासी खानवादे इस माफिया का हिस्सा है। कानून पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों में किराएनामे आवेदन कराने में कामयाब नहीं हो पा रही। नतीजतन माफियाज और हुकूमत की रस्साकशी में अब तक माफियाज हावी दिखाई देते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। संदीलिया वाली के नवाही इलाका चक 46 में दौरे जदीद में भी तालीम और सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इलियास। वाली का नवाही इलाका चक 46 जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी रियाज फतियाना का है, जहां सीवरेज सिस्टम ना होने से सीवरेज का पानी रस्तों और गलियों में खड़ा रहता है। मकीनों को शदीद दुश्वारी, अजियत और मुश्किलात का सामना। तलबा तलबात को असूल तलीम के लिए दूर दराज का सफर करना पड़ता है। राब्ता सड़कों की टूट फूट से सफर में शदीद दुश्वारी का सामना है। कई चकूक की हजारों आबादी के लिए बुनियादी मराकज सेहत न होने से लोगों को इलाज मुआवजे के लिए कोई सहूलत मैसर न है। मकीनों के साथ न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सियासतदान वोट लेने आते हैं, झूठे दावे करते हैं, लेकिन असेंबली में जाते हैं तो वापस लौट कर आना गवारा नहीं करते। जनाब अल्लाह साडी अपील आ कि साडे जदों बारिश हो जाती है, साडियां गलियां गंदियां हो जांदियां, सानूं ना कोई सोलंग दी सहूलियत है, ना साडे कोई नाली दी सहूलियत है। गलियां दे विच गंदे नालियां दा पानी आउंदा, सानूं बहुत परेशानी है। जदों साडे जनाजा कोई फौतगी हो जाती है, सानूं जनाजा करना औखा हो जाता। इस वजह तो बराए मेहरबानी सानूं साडी अपील आ कि सानूं सोलंग नालियां मिलन। फतियाना साहब टीवी पर तब्दीली के बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अपने हलके की हालत राज का इल्म ना है। मकीनों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुतालबा किया है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए, बुनियादी मराकज सेहत की सहूलत दी जाए, राब्ता सड़कों और सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल किए जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज, संदीलिया वाली। चिनियोट को अमीनपुर शहर और दीगर शहरों से मिलाने वाली राबिता सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। अमीनपुर शहर को दीगर शहरों से मिलाने वाली राब्ता सड़कें खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक चिनियोट को अमीपुर और अमीपुर को बुआना से मिलाने वाली राब्ता सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। चिनियोट अमीपुर रोड और बुआना अमीपुर रोड पर जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और दोनों रोड टूट फूट का शिकार होकर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। मुसाफिर
अपनी जान खतरे में डालकर इन रोड्स पर सफर करते हुए मुतअद्दिद बार हादसात का शिकार होकर न सिर्फ जख्मी हो चुके हैं बल्कि जान की बाजी भी हार चुके हैं। इन रोड से गुजरते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों की भी बुरी हालत हो जाती है। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस अमर की है कि चिनियोट ता अमीपुर रोड और बुआना ता अमीपुर रोड को हंगामी बुनियादों पर बनवाया जाए ताकि न सिर्फ हादसात में कमी हो बल्कि इन रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में भी कमी आ सके। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिनियोट। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। चिनोट हकानिया रोड पर तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल और रक्शे में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सवात में मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में खातून जाँ बहक जबकि 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादकाबाद में कौमी शाहराह पर पेट्रोल से भरा हुआ ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीदके में काला खताई रोड पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस मोड़ काटते हुए उलट गई जिससे एम्बुलेंस में सवार 9 अफराद जख्मी हो गए जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिहाड़ी के इलाके लुडन में मौज़ालियुद्दीन से गुजरने वाला मेन करमपुर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। जानते हैं मोहम्मद काशिफ की इस रिपोर्ट में। लुड्डन का शुमार पाकिस्तान के कदीमी कस्बों में होता है, लेकिन बदकिस्मती से लुड्डन को तरक्याती कामों से हमेशा ही महरूम रखा गया है। मौज़ालियुद्दीन की सड़क लुड्डन को मेलसी से मिलाती है, लेकिन करमपुर रोड पर वाक़ सड़क टूट फूट का शिकार है और जगह जगह पर गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि राहगीरों को भी शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से मौज़ालियुद्दीन की आवाम कसम पुरसी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। हस्बे मामूल इस साल भी मौज़ालियुद्दीन से गुजरने वाली मेन रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि रोड से गुजरने वाली गाड़ियां भी 2 मिनट का सफर 2 घंटों में तय करती हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करे ताकि यहाँ आए रोज होने वाले हादसात से भी बचा जा सके। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ सहू, सच न्यूज, लुड्डन। सकर की तहसील पुनवाकल में नेशनल हाईवे रोड पर आए रोज हादसे मामूल बन गए। एक ही हफ्ते में 3 हादसे हुए जिनमें मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। फिदा मिरानी की रिपोर्ट। पुनवाकल नेशनल हाईवे से चारों सूबों से मुसाफिर गाड़ियों समेत मुख्तलिफ गाड़ियों की आमदरफ्त होती रहती है। इसके अलावा मकामी लोग देहातों की तरफ आने जाने के लिए नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करते हैं। हादसे रोज का मामूल बन गए हैं, कभी मकामी लोगों के साथ तो कभी दूसरे सूबों से आने वाले मुसाफिरीन के साथ। एक ही हफ्ते में 3 हादसे हुए। अक्सर हादसे बाईजी चौक और सांगी के इलाके में हुए। पहला खौफनाक हादसा VIP चेक पोस्ट पर हुआ जिसके नतीजे में 3 नौजवान जान बहक हो गए। दूसरा हादसा जतोई मोड़ पर हुआ जिसके नतीजे में 2 नौजवान सख्त जख्मी हो गए। तीसरा हादसा हिंगोर में हुआ जिसके नतीजे में एक औरत जान बहक हो गई, 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन सारे हादसात का सबब ओवर स्पीड और रॉन्ग ओवरटेकिंग है जो मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी के लिए सवालिया निशान है। मोटरवे पुलिस को चाहिए अपनी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाने के लिए पुनवाकल नेशनल हाईवे पर अपना गश्त बढ़ा दे, कानून की खिलाफवर्जी करने वालों से सख्ती से पेश आए ताकि मजीद इंसानी जाने जाया होने से बच जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा मिरानी, सच न्यूज, पुनवाकल। फैसलाबाद की तहसील तांदरिया बाला में खतीर लागत से बनने वाला कारपेट रोड मुतालिका इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जिसके बायस हादसात मामूल बन गए। तांदलेवाला के नवाई इलाकों में साबका दौरे हुकूमत में खतीर लागत से बने कारपेट रोड मुतलका इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार होने लगे। रोड के इर्द गिर्द बने गहरे गड्ढे हादसात का सबब बन गए। इंतजामिया ने भी चुप साध ली जबकि शहरी सरापा एहतजाज अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलेवाला और इससे मुलहका इलाकों में साबका दौरे हुकूमत में खतीर लागत से बने कारपेट रोड अड्डा बाबा फरीद शादी सादात गढ़ फतेह शाह से वट्टू चौक मुतलका
मुतल्लिका इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। रोड के दोनों अतराफ बने गहरे गड्ढों से जहां रोड तेजी से तबाह हो रहे हैं तो वही हादसात भी मामूल बन चुके हैं। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि महकमा शाहरात हाईवे पंजाब और तहसील इंतजामिया अपनी आंखों के सामने गुलशन तबाह होता देख रही है। हुकाम इस पसमानदा हलके में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की बजाय पहले से बने मंसूबों को भी तबाह कर रही है। शहरियों ने हलके में तरक्याती फंड जारी करने के साथ अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शाहरात की देखभाल फौरी अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। पाकपतन की तहसील आरिफवाला के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर सप्लाई सिस्टम खराब होने के बायस शहरियों को गर्मी के मौसम में शदीद परेशानी का सामना है। जावेद रजा की रिपोर्ट। सख्त गर्मी में साफ पानी का न मिलना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहर के मुताद्दद इलाकों में वाटर सप्लाई में गंदा बदबूदार पानी मिला आने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त अजियत का सामना है। शहरी इस्तेमाल का पानी दूर दराज के इलाकों से भरने पर मजबूर हैं। ये तकरीबन 15-20 दिन से ये मसला है पानी का। गटरों का पानी जो है वो हमारे पीने वाले जो नल हैं उनमें मिक्स होकर गंदा होकर बदबूदार होकर हमारे घरों में आ रहा है। तो हमारी इंतज़ामिया से, एसी साहब से और पानी वाली जितनी भी इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश है कि वो हमारा ये मसला हल करें। गंदा आ रहा साढ़े एच ब्लाक च, डी ब्लाक च, सी ब्लाक च, जी ब्लाक च, ये चारा महल्लियां च गंदा खलीस पानी आ रहा गटर का। पीने वास्ते पानी जो साफ नहीं, नहाने वास्ते, बर्तन धोने, कपड़े धोने वास्ते कोई पानी साफ नहीं मिल रहा सर। शहरी कहते हैं गर्मी के मौसम में वैसे भी पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए फिलफौर पानी का मसला हल करे। जबकि दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का कहना है पानी के इस मसले को हल करने के लिए काम जारी है, जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। बावल नगर की तहसील मिंशनाबाद में साबिका हुकूमत ने 25 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, जिनको मौजूदा हुकूमत ने ताले लगाकर बंद कर दिया, जिसके बाद शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस हवाले से जानते हैं अजहर नदीम से। जी अजहर, आगाह कीजिएगा। साबिका हुकूमत की जानिब से तहसील मिंशनाबाद में 25 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, जिससे 7 लाख तक आबादी मुस्तफीद हो रही थी, मगर मौजूदा हुकूमत में इन प्लांट्स को ताले लगा दिए गए हैं और शहरियों को साफ पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। शहरियों ने 12 दफ़ा एहतजाज भी किया, मगर हुकूमत और इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी और अब तक इनके ताले ना खुल सकें। शहरियों का हुकूमत वक्त और इंतजामिया से मुतालबा है कि इनको जल्द अज जल्द फाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर मजीद मुझे अमराज में मुब्तला ना हों। जी शुक्रिया अजहर नदीम। जिला बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में महकमे ज़राअत का दफ्तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके बायस दफ्तर में आने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना है। कामरान रजा की रिपोर्ट। 9 सदी से ज्यादा अरसा कबल तामीर होने वाली महकमा ज़राअत की मरकजी इमारत व क्वार्टर्स की दीवारें और छतें बोसीदा हो चुकी हैं, जबकि अरसा दराज से दफ्तर की तज़ीन और आराइश न होने के बायस इसकी इमारत खंडरात में तब्दील होकर अब अंदर से भूत बंगला दिखाई देती है। महकमा ज़राअत का दफ्तर 4 दीवार से महरूम और खस्ता हाल इमारत होने के सबब जगह जगह कचरा होने की वजह से बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुका है। अब्बासिया रोड से दफ्तर की अकवी सीमत 4 दीवारी न होने से वहाँ नजदीकी दुकानों और घरों के अफराद ने कूड़ा किटकिट के लिए दफ्तर ज़राअत की जगह मुख्तस कर रखी है। बुनियादी सहूलियत न होने के बाद दफ्तर में आने वाले काश्तकारों को भी शदीद परेशानी का सामना रहता है। शहरियों ने महकमा ज़राअत के आला हुकाम से उस शरीफ में दफ्तर ज़राअत की तज़ीन और आराइश और बुनियादी सहूलियत की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ सैयद कामरान रजा, सच न्यूज, उच्च शरीफ। सब तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर चन्नीगोट में हेड ब्यासी वाली पुल खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों ने हुक्काम बाला से पुल की मुरम्मत का मुतालबा किया है। मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट। अब तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर चन्नीगोट में हेड ब्यासी वाली पुल बहुत ही खस्ता हाल और नकारा हो चुकी है। कई बार जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। पुल खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त गिरकर किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। हेड ब्यासी वाली पुल कई शहरों और गाँव की ट्रैफिक और आमदरफ्त का वाहिद पुल है और इस पुल पर हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज हादसे भी होते रहते हैं और पुल के दोनों जानब कोई लोहे की बाड़ न है। आने जाने वाले मुसाफिरों को हर वक्त खतरा लायक रहता है। आज तक न किसी MNA न MP ने कोई तवज्जो नहीं किया है और ना ही कभी महकमे वालों ने इसकी मुरम्मत कराने की जहमत किया है। लिहाजा अहले इलाके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुरम्मत कराया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चन्नीगोट।
सच न्यूज की खबर पर एक्शन। टेंडुअलयार के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद डिस्पोजल प्लांट्स की मशीनें खराब होने की खबरें नशर होने का एक्सीएन पब्लिक हेल्थ ने नोटिस ले लिया। मशीनों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। टंडोलयार में अवामी मसाइल की निशानदेही करने में सच एक बार फिर सबसे आगे चलने लगा। सच न्यूज पर टंडोलयार के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद डिस्पोजल प्लांट्स की मशीनें खराब होने और मेन तालाब की खाटी न होने की खबरें नशर होने का एक्सीएन पब्लिक हेल्थ मंजूर कलवड़ ने नोटिस ले लिया। एक्सीएन पब्लिक हेल्थ मंजूर कलवड़ की सख्त हिदायत के बाद टंडोलयार के मुख्तलिफ इलाकों सतार पंप, मीरवा नाका, एमएनए स्कीम, कुंभार मोहल्ला और मेन डिस्पोजल की मशीनों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि तमाम डिस्पोजल पर तालाब की खाटी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई के बावजूद टंडोलयार शहर बारिशों से कबल डूब रहा था, जिसकी खबर सच न्यूज ने नशर की और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया ने आवाम को बारिशों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिस्पोजल की खाटी और मशीनों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। कोई भी इंतजाम वक्त से पहले किए जाते हैं, बाद में नहीं होते हैं। वो बाद में तो ये है कि पब्लिक जो है वो मुश्किल से दो चार ही होती है। और ये आपको देखने में आया होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर उन्नड़ पड़े कि अवाम एहतजाज भी किए थे, ठीक है, रोडों पर भी आए और प्रेस क्लब पर जो है वो उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे। वो इसलिए हुए थे कि इससे पहले कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इस बार दिखने में आ रहा है, हमें जो काम हो रहा है वो होता हुआ दिखने में आ रहा है। शहरियों ने मजीद कहा कि पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने वक्त पर डिस्पोजल की खाटी करके हमारी बेचैनी को खत्म किया है और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह आवाम को बारिशों से डूबने से कबल इंतजाम बेहतर किए जाएंगे। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलयार। चारसदा की तहसील शब कदर बाजार में जनरल बस स्टैंड के बाजार से बाहर मुंतकली के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। नादिर शाह की रिपोर्ट। जिला चारसदा की तहसील शब कदर बाजार से बाहर ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकिली के खिलाफ एहतजाजी धरनों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सख्त गर्मी में एक महीने से जारी एहतजाजी धरनों और मुजाहिरों के बाद शब कदर समेत कबायली जिला मुमन और बाजौड़ के मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शब कदर बाजार के ताजर बिरादरी और दुकानदारों की जानिब से आज होने वाले एहतजाजी वाक, मुजाहिरा और मेन चौक के धरने के बायस आग बरसाता सूरज ने गाड़ियों में बैठे शहरियों को बेहाल कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी जुमातों के अहदेदारों ने भी शिरकत की और हुकूमत से अड्डों की मुंतकिली का फैसला वापस लेने का मुतालिबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सियाह झंडे, बैनर्स और कतबे उठाए हुए हुकूमत से शब कदर बाजार में ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकिली की शदीद अल्फाज में मजम्मत और शब कदर बाजार में अड्डों को पुरानी जगह पर बहाली का मुतालिबा कर रहे हैं। शब कदर बाजार से ट्रांसपोर्ट अड्डे की मुंतकिली जो वीरान जगह पर हो रहा है, उनके खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गया है कि उनके उन अड्डे की मुंतकिली की वजह से ताजर बरादरी को शदीद नुकसान हो रहा है। वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा और कोर कमांडर और डीसी और वगैरह अफसरान से मुतालिबा करता है कि उसमें एक आला कमीशन मुकर्रर किया जाए और शब कदर के ताजर और आवाम की हौसला अफजाई की जाए और वो मसला हल किया जाए। अगर वो मसला हल नहीं किया गया तो हम एहतजाज जारी रखेंगे और बाजारों को बंद करेंगे और लोगों को सड़कों पर निकाल कर इस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे जायज मुतालिबा पूरा नहीं की जाएंगे। शब कदर बाजार में ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकिली के खिलाफ मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरों के बायस सख्त गर्मी में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। हुकूमत को चाहिए कि शब कदर बाजार में मौजूद जनरल बस स्टैंड की मुंतकिली का गंभीर मसला फौरी तौर पर हल करे। कैमरा टीम के साथ सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, तहसील शब कदर। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। आज से दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को तिब्बी सहूलियात मैसर होगी। कार्डियोलॉजी यूनिट मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुखैर हजरात की जानिब से अतिया की गई लाखों रुपए की खती रकम से जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता 5 बेड पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी वार्ड का चेयरमैन कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ फतेहाना ने इफ्तिताह कर दिया। कार्डियोलॉजी वार्ड सरकारी बिल्डिंग में अपनी मदद आपके तहत कमालियत से तल्लक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों मुखैर हजरात की ताउन से बनाया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने कहा कि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की इस काविश पर खलूस दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर की मुस्तकिल तैनाती अमल में लाई जाएगी ताकि मरीजों को ऑपरेशन की सहूलियात दस्तियाब हो सके। कार्डियोलॉजी वार्ड में मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर MNA रियाज फतेहाना ने तकरीब से
سے خطاب کرنے کے دوران ڈونرز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ انشاءاللہ جلد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈائلسس یونٹ کا بھی آغاز کیا جائے گا. انشاءاللہ عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کی تکمیل کی جائے گی. تقریب میں صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ، سی او ہیلتھ مرکزی چیئرمین انجمن بہبود مریضاں چودھری محمد اشفاق، محمد طارق سابق چیئرمین، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ. اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں شہریوں اور دعوت اسلامی کے کارکنوں نے خون کے احتیاط دیے. ایوب خاور کی رپورٹ. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں شہریوں اور دعوت اسلامی کے 200 کے قریب کارکنان نے خون کا عطیہ کیا. اس موقع پر دیپال پور کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اسلامی بھائیوں کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں شدید دیگر چیزوں کی جہاں قلت آئی، وہاں تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے خون کی بھی قلت ہوئی. تو اس وقت میں میرے دعوت اسلامی دامت برکات العالیہ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جانثاروں کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان ننھے بچوں کی جان بچانے کے لیے جو ہے آپ نکلیں. تو الحمدللہ بے شمار شہروں کے اندر اسلامی بھائی جو ہے اس خون کا عطیہ دینے کے لیے نکلے. آج ہم دیپال پور میں حاضر ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خون کا عطیہ دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اور ان اسلامی بھائیوں کا یہاں کا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 200+ بیگز جو ہیں ہم تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ عطیہ کریں گے. اب تک دعوت اسلامی تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے 102 سے زائد شہروں میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کر چکی ہیں اور 25,000 سے زیادہ بلڈ بیگ دعوت اسلامی دے چکی ہیں. اور آج دیپال پور شہر کے اندر الحمدللہ یہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا سلسلہ جاری ہے اور عاشقان رسول آ رہے ہیں اور امیر سنت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. جہاں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ نے دیگر ضروریات زندگی کے لیے اشیاء خورد و نوش کی تقسیم کی، تو وہیں پر تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے 105 سے زائد شہروں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے، جہاں 26,000 سے زائد کارکنان خون کا عطیہ کر چکے ہیں. مزید یہ سلسلہ دیگر شہروں تک بھی وسیع کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور، سچ نیوز، دیپال پور. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ریسکیو 1122 چکوال کی سیفٹی ٹریننگ ونگ ٹیم نے میونسپل آفس کے سٹاف کو سیفٹی ٹریننگ دی، جس کا مقصد حفاظتی انتظامات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا. راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ. حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان اور انجینئر سعید احمد ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 کمیونٹی ونگ کے ذریعے ایم سی آفس چکوال میں ایک روزہ سیفٹی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیفٹی ٹریننگ ٹیم نے میونسپل سٹاف و دیگر محکموں کے ملازمین کو حفاظتی انتظامات کے بارے میں تربیت مہیا کی. ریسکیو ٹریننگ کوآرڈینیٹر خرم منظور نے شرکاء کو کام کے دوران حفاظتی انتظامات کو بہتر بنانے اور پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنے کے طریقے سکھائے. اسسٹنٹ کمشنر چکوال مظفر مختار و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیفٹی ٹریننگ میونسپل سٹاف کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. ہم دیگر محکموں میں بھی ایسی ٹریننگ کا انعقاد کرایا جائے گا. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ رجت ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال. حکومت پنجاب کی ہدایت پر کورونا وبا کو 100 دن مکمل ہونے پر وبا کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم عزم و ہمت منایا گیا. ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے ڈاکٹروں، نرسز و عملہ کو پھولوں کے گلدستے اور یادگاری شیلڈیں پیش کی. راجہ منصور احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ننکانہ صاحب کے ڈاکٹروں نے پہلی دفاعی لائن کا کردار ادا کیا. کورونا کے بارے میں وہ تمام ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جس میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں اور ادر سپورٹ اسٹاف موجود ہیں، جنہوں نے اپنی جو ہے نا وہ بہترین سروسز کا مظاہرہ کیا اور ننکانہ سے اس وبا کو خاتمے کرنے کے لیے اپنی جو کوششوں کو جاری ساری رکھا ہوا ہے. اور اس بنیادی اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ ان سروسز کو اکنالی کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے. اور اس جو تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب تھے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر شکیل کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کے خلاف ہمارے طبی عملہ نے اپنے فرائض منصبی اچھے طریقے سے سر انجام دیے. ننکانہ صاحب ڈی ایچ کو ہاسپٹل میں 330 پیشنٹ آئے تھے، ان میں سے 315 پیشنٹ کیور ہو کے ماشاءاللہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. کیور ریٹ ہمارا بہت اچھا ہے اور ڈیتھ ہماری ٹوٹل 6 ہوئی تھی. تو الحمدللہ بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری
तो इसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब और सीओ साहब और राजा मंसूर साहब की ज़ेर निगरानी में बड़ा अच्छा हम कोविड के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार का कहना था कि हमारे पास टोटल 322 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से लड़ने वाले बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने गुलदस्ते और तारीफी असनाद तकसीम की। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। जनावाला के नवाई कस्बा खिरडियावाला में बिजली का सर्किट शॉर्ट होने से घर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मुजम्मिल राना की रिपोर्ट। जरावाला के नवाही कस्बा खुड़ियावाला में मेन बाजार जुमरा रोड पर ओसिया मस्जिद के करीब घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का दफ्तर चंद गज के फासले पर लेकर कॉल करने के बावजूद 1 घंटा ताखीर से पहुंचा। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न पाया जा सका। घर में लाखों रुपए सामान जलकर खाकतर हो गया। मुतासरीन ने फायर ब्रिगेड के अमले के खिलाफ आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन सैयद शाह के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज, जरावाला। पाकपतन में एंटी करप्शन ने कब्जा माफिया से कब्रिस्तान की अराजी वागुजार करवा ली। काबिजीन ने दरबार से मुल्का कब्रिस्तान की सरकारी अराजी पर पुख्ता तामीरात करके कब्जा जमा रखा था। एंटी करप्शन ने पाकपतन के नवाही इलाके 34 एसपी से महकमे औकाफ की निशानदेही पर कब्रिस्तान की 8 कैनाल अराजी वागुजार करवा ली। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन के मुताबिक वागुजार करवाई गई अराजी पर नाजायज काबिजीन ने पुख्ता तामीरात करके दरबार से मुल्का कब्रिस्तान की अराजी को कब्जा में ले रखा था। एंटी करप्शन ने पुख्ता तामीरात को गिरा कर अराजी का कब्जा महकमे औकाफ के हवाले कर दिया। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सोहाबा में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग करते हुए जायदुल मयाद अशिया की बड़ी खेप पकड़ ली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सोहाबा में गोदाम पर छापा मारकर भारी मिकदार में मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली और गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जायदुल मयाद अशिया खाने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता नामवर नातगो शायर लाला सहराई को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। उनकी यादें ताजा करने के लिए देखिए राशिद अली की रिपोर्ट। चलते हो तो चलो मदीने, वहाँ एक दिलकश रोजा है। रोजा क्या है गोया ज़मीं पर जन्नत का एक गोशा है। चौधरी मोहम्मद सादिक लाला सहराई 14 फरवरी 1920 को अमृतसर में पैदा हुए। तकसीम हिंद से कबल ही वो अपने वालिदैन के साथ जहानिया मुंतकिल हो गए। वो एक मारूफ नसर निगार और नादगो शायर थे। हमदो नात पर इनकी 16 कुतुब शाया हुई। नसर निगारी पर भी तसनीफ शाया हुई, जिन पर इन्हें खूब शोहरत मिली। हमारे खानदान में, हमारे फैमिली मेंबर्स में द ब्राइटेस्ट ज्यूल इन द ब्रिटिश क्राउन, तो जिस तरह बरतानिया के ताज में चमकने वाला हीरा वो इंडियस कहता था, तो बरतानिया के ताज में चमकने वाला हीरा इंडिया है। हमारी फैमिली में चमकने वाला हीरा वो लाला सहराई थे, जिन्होंने बहुत से दिलों को सैराब किया और लोगों ने इससे फायदा उठाया। इनकी शोहरत याफ्ता नसरी तसानीफ में चमन मेरी उम्मीदों का, नए फूल पुरानी खुशबू और नूर मीनारा शामिल हैं। वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। उन्होंने गज़वात रहमतुल आलमीन को मंजूम सूरत में पेश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। तमाम गज़वात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूम करने की सआदत हासिल करने वाले वो उर्दू अदब के पहले शायर थे। गज़वात रहमतुल आलमीन के मनाज़र को शायरी में ढालने पर इनको 27 जून 1999 को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त के सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तार ने सदारती अवार्ड लाला सहराई को एक तकरीब में दिया। एक सिर्फ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने खाके लिखे, अफसाने लिखे, मिजाज लिखा, मज़ामीन लिखे और फिर उन्होंने तराजुम किए। जो बड़े अफसाना निगार हैं जैसे मुबसा है या दीगर अफसाना निगार है बैनुल अक़वामी, उनके अफसानों के उन्होंने तराजुम भी किए, सफरनामों के तराजुम भी किए। उन पर तहकीकी काम हो रहा है। एमफिल की सतह पे उन पे कई मकाले लिखे जा चुके हैं। उनका जो सारा कलाम है वो कुलियात लाला सहराई और नगारशात लाला सहराई के नाम से महफूज कर लिया गया है। लाला सहराई की अदबी खिदमात के इतराफ में जहानिया में इनके नाम से लाला सहराई चौक भी मंसूब है। लाला सहराई 7 जुलाई 2000 को 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।
ان کی تدفین ان کے آبائی علاقہ جہانیہ میں کی گئی۔ ایوارڈ یافتہ نعت کو شاعر صحرائی مرحوم کی نعتیں شاعری سننے والوں پر سحر طاری کرتی ہیں۔ ان کی ادبی خدمات ان کی یاد دلاتی رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد علی، سچ نیوز، جہانیہ۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ 9000 سال قبل مسیح ایک خانہ بدوش قبیلے نے بلوچستان کے ضلع بولان میں دریا کے کنارے مہرگڑھ نامی شہر آباد کیا تھا۔ قدیم تہذیبوں کے امین اس شہر کی آبادی 20,000 سے زائد نفوس پر مشتمل تھی۔ عبدالغنی کاکڑ کی رپورٹ۔ وادی کوئٹہ سے 3 گھنٹے مشرق کی جانب ضلع بولان میں سڑک سے 5 کلومیٹر دور دول سے اٹھا ہوا دشت ہے، جس میں خانہ بدوشوں کے ایک آدھ خیمے کے علاوہ ہر طرف ویرانے کا راج ہے۔ ایک طرف دریائے بولان کی بوری پہاڑیاں تو دوسری طرف دریائے بولان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے گمبھیر خاموشی سے بہ رہا ہے۔ 9000 سال قبل مہرگڑھ نامی اس قدیم شہر کو ایک خانہ بدوش قبیلے نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کو زرعی بستی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ قرۂ ارض پر انسانی تاریخ میں پہلی بار کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے کی وجہ سے ایک منفرد شناخت بھی رکھتا ہے۔ 20,000 سے زائد نفوس پر مشتمل مہرگڑھ کی قدیم تہذیب کو 1973 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ ژان فرانسو جیرک نے کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا۔ فرانسیسی ٹیمیں یہاں 30 سال تک کھدائی کرتی رہیں اور اس دوران انہوں نے یہاں سے انسانی ڈھانچوں، مجسموں، اوزار، برتنوں اور دیگر ساز و سامان کی شکل میں انسانی تاریخ کا بیش بہا خزانہ برآمد کیا۔ اس بستی کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا زرعی معاشرہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ مہرگڑھ میں آباد لوگوں کا انحصار جانوروں اور پودوں پر ہوا کرتا تھا۔ اس قدیم بستی سے دریافت ہونے والے آثار سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں نہ صرف دانتوں کی سرجری کی جاتی تھی بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کپاس بھی مہرگڑھ میں اگائی گئی۔ یہ شہر قدیم دنیا کا تجارتی مرکز بھی تھا۔ مہرگڑھ کا یہ علاقہ افغانستان اور سندھ کے درمیان ایک اہم ترین راستے پر آباد کیا گیا تھا۔ ماہرین کے بقول مہرگڑھ کے لوگ افغانستان سے پتھر لا کر یہاں تیاری کے بعد دیگر ممالک بھی بھیجا کرتے تھے۔ برصغیر میں مجسمہ سازی اور بت سازی کے فن کا آغاز بھی یہی سے ہوا تھا۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ سطح سمندر سے 11,500 فٹ بلندی پر واقع گلگت بلتستان کا علاقہ دپاکتشو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث سیاحوں کی نظروں سے اب تک اوجھل ہے۔ بات کرتے اپنے نمائندے علی رضا سے اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں۔ جی علی رضا، بتائیے گا اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں سطح سمندر سے 11,500 فٹ بلندی پر یونین کونسل کتیشو کھرمن کے نواحی گاؤں دفا تھلخور میں۔ یہاں پر سیاحت کے حوالے سے بے شمار مواقع موجود ہیں، مگر صوبائی حکومت کی عدم دلچسپی اور جو ہے نا ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے پیش امام مولانا ابراہیم صاحب، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی مولانا صاحب، آپ بتائیں کہ یہاں پر آپ کے علاقے میں بہترین جو ہے نا مواقع صحت کے حوالے سے ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں، ان حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع دپا یونین کونسل کتیشو ضلع کھرمن کا نہایت ہی پسماندہ علاقہ ہے، جہاں زندگی کی تمام سہولیات سے محروم ہے۔ اس علاقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے یہ گسائی کے بالکل قریب ہے اور سیاحت کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ جھیلیں ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہاں پر دلچسپی لے کر اس علاقے کو یعنی کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح اگر کوئی مراحت دے کر یہاں روڈ بن جائے، یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ایک پل بن رہا ہے، اگر پل بننے کے بعد یہ جیپ برج بننے کے بعد بہت زبردست علاقہ ہے، قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکام نے ہمارے اس علاقے کو توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اب بھی اس 21ویں صدی میں بھی زندگی کے تمام سہولیات سے محروم ہے۔ مثلا ہیلتھ، ایجوکیشن، روڈ اور ٹیلی کمیونیکیشن، یہ بنیادی جو سہولیات ہیں ان سے محروم ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ تشریف لائے ہیں
रोड के हालात देखें, कहीं रोड के नामो निशान नहीं मौजूद नहीं। इसी तरह हेल्थ में भी कोई हस्पताल है लेकिन डिस्पेंसरी है, डॉक्टर मौजूद नहीं। एजुकेशन में भी गैर मकामी है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी गुजारिश है, इस इलाके के गरीब आवाम की गुजारिश है कि वो ये एक्शन लेकर इस इलाके की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बेहतरीन जगह है, बेहतरीन मकाम है और आप देख रहे हैं कि सयाहत के लिए लोग यानी कि कोसों दूर से यहाँ तशरीफ लाते हैं झील देखने के लिए। और यहाँ से दुसाई तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है। सतपारा रोड के मुतबादिल अगर रोड बन जाए तो हमारी जो यानी कि मजबूरियाँ हैं वो भी ख़त्म होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अली रजा। कोहाट के संगम पर वाक़े पानी के चश्मे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। गर्मी के मौसम में सयाह दूर दराज इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं। अली बंगश की रिपोर्ट। कोहाट के संगम पर वाक़िया इलाका बंगश कचाई में मारूफ सूफी बुजुर्ग सैयद मीर हबीब औलिया मजार पर वाक़िया कुदरती चश्मा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यकीन जाने जो मनाजर मैंने यहाँ देखे हैं दुनिया में बहुत कम जगहों पे ऐसे मनाजिर होंगे। अल्लाह ताला की बहुत शान है। यहाँ आके कुदरती मनाजिर हैं, यहाँ पानी बहुत अच्छा है, चश्मे हैं, तो पिकनिक जो पॉइंट्स है वो तो कुदरती हैं। गर्मी के इस मौसम में सियाह इस खूबसूरत चश्मों में नहाने के लिए जोक दर जोक आते हैं और यहाँ ठंडेटार पानी में नहाकर खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ पर आए हुए सियाह सहूलियात के फुकदान और इस इलाके की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि और यहाँ पे आके उनको एक तो गर्मी का एहसास नहीं होगा और उनको जो है ज़्यादा खूबसूरती और ऊंचे दरख्त और जंगलात वगैरह देखने को मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि इस जगह को डेवलप करना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसे इलाकों पर तवज्जो दें तो ये खूबसूरत इलाके और भी सयाहों के तवज्जो के मरकज बन जाएंगे और ऐसे पसमानदा इलाकों में तरक्की और खुशहाली आएगी। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। सिंध के इलाके ठिल में शाही कैनाल में 50 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया जिससे हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई। सिंध और बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी के इलाके मांझीपुर में शाही कैनाल में 50 फीट चौड़ा शगाव पड़ने से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा आबपाशी का अमला बर वक्त इत्तला देने के बावजूद भी न पहुंच सका जिसके बायस चावल और गन्ने की तैयार फसल तबाह हो गई। साल भर की मेहनत ज़ाय होने से काश्तकार परेशान हैं और अपनी मदद आप के तहत शगाव को पूर करने में मसरूफ हैं। काश्तकारों ने हुक्काम बाला से आबपाशी अमले के खिलाफ नोटिस देने का मुतालबा किया है। आम खबर से आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत ने 3 JITs पब्लिक कर दी। उजैर बलोच, निसार बोराई, सानिया बल्दी की JITs शामिल हैं। JITs महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर मौजूद हैं। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट 36 सफात पर मुश्तमिल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 3 अहम तरीन JIT रिपोर्ट आज जारी की है। सिंध हुकूमत ने अजीज बलोच, निसार बोराई और बंजे टाउन की 27 स्टेशन में मुख्तलिफ JIT सामने मंजर आम पर आ गई है। JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान मुशीर इजलास ने कहा किया था, जिसके बाद जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है JIT 27 जो मुश्तमिल आ गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री JIT रिपोर्ट ये थी कि बात में मुश्तमिल थी। रिपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफवाह मौजूद है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री मंजर आम पर मनसूबा बंदी के तहत दहशतगर्दी का JIT सानिया बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या नहीं था। JIT की 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने के पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दी गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के वाक़े से मार्च की जमान देना का हाथ बताया जाता है। बल्दिया फैक्ट्री प्रोफेशनल अंदाज में ढील से गया था और सानिया की तहकीकात के दौरान अंदरूनी बैरूनी तौर पर अपने बात होने की कोशिश की गई थी। दहशतगर्दी के वाक़े को FIR में ऐसे पेश किया गया जैसे कि कोई आम कदर का वाक़या होता है। इसके बाद जो अजीज बलोच की JIT रिपोर्ट JIT में अजीज बलोच पहले खाने और दोस्तों के नाम की दर्ज है। JIT में हबीब जान, हबीब हसन, सैफ अली, नूर मोहम्मद समेत दर्जनों के नाम शामिल है। अजीज बलोच को 198 अफराद को मारने का एतराफ़ किया JIT रिपोर्ट। अजीज को लसानी कौमी बातनाज़े में तमाम अफराद को कत्ल किया था। अजीज पर 100 की बुनियाद पर 7 ऑपरेशन कामयाब कराए।
اور اس کے علاوہ جو سال 2019 میں محمد رئیس کو ایڈمنسٹریشن جاری لگایا. اس کے علاوہ جو ملزمان کی بیرونی ملک قرار کے باوجود ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ بدل بیچتے رہا تھا. 2008 سے 2013 کے دوران مختلف ہتھیار خریدنے کا انکشاف بھی ہے. ملزم مقتد افراد کو تاریخ میں ملوث ہے. ملزم مقتد پولیس اور رینجر اہلکاروں کی قتل میں ملوث بھی ہے. ملزم کے پاکستان اور دبئی میں غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے اثاثے کا انکشاف بھی ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے کہ رپورٹ پبلک کی جانے کے بعد جو ہے ایک تو اہم رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ہیلپر مدنی حکومت کی جانب سے عزیز کے اعتراف یہ بھی ہے کہ بابا لاٹو اور جفان لگنے کے ذریعے رضاق کمانڈو کے بھائی کو 2010 میں قتل کیا گیا تھا. عزیز بلوچ کو سراج کے شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں رسانی بنیادوں پر قتل عام کروایا. عزیز بلوچ کے کہنے لگنے کے ذریعے شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں 11 افراد کو قتل کیا گیا. مختلف سیاسی جماعتوں کو بھتہ نہ دینے کا مارا گیا. عزیز بلوچ کے اعتراف کیے تھے 6 نومبر 2012 کو پارٹی کے محمد خان کو قتل کیا گیا. عزیز بلوچ کا اعتراف یہ بھی ہے کہ اپنے وارث کے قتل کا بھتہ نہیں. مارچ 2013 میں ارشد پپو کو قتل کیا گیا. ارشد پپو کے قتل میں کئی پولیس انسپکٹر کی مدد کی گئی. عزیز بلوچ نے ارشد پپو اور دیگر ملزموں کو آدم کی گودام میں لایا گیا. ارشد پپو اور اس کے دو ساتھیاں گودام میں شامل تھے. عزیز بلوچ کو 5 2012 میں جاری آپریشن میں دوران اب تک کارندوں کو پولیس کے خلاف مذمت کا حکم دیا تھا. عزیز بلوچ جینٹ گروپ اور اینکون کے درمیان رابطے میں بھی رہتا تھا. اور اس کے علاوہ عزیز بلوچ کو پارٹی کونسل کو تھانوں پر حملوں کا بھی اعتراف ہے. عزیز بلوچ کو ارشد پپو کو پارٹی کی گروپ پر حملوں اور شہریوں کی جابہ ہونے کا بھی اعتراف کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز بلوچ کے جو عزیز دوست ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جو مطلب ظاہر نظر آتی تو 2008 سے 2013 کے درمیان مختلف ہتھیار خریدنے کا انکشاف ہے. اور ملزم مقتد افراد کی سازش میں ملوث بھی ہیں. ملزم مقتد پولیس اور رینجرز میں جو قتل میں ملوث بھی پائے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ. شاہد اعجاز ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سندھ حکومت نے 3 JITs کی رپورٹس پبلک کر دی ہیں. عزیر بلوچ، نثار بورا، ثانیہ بلدیہ کی JITs کو پبلک کر دیا گیا ہے. عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے 3 JITs پبلک کی ہیں اور جس میں عزیر بلوچ کا معاملہ، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن اور نثار مورائی کا معاملہ جو ہے اس پہ JITs بٹھائی گئی تھی جن کی رپورٹ سامنے آئی ہیں اور ان رپورٹس کو پبلک کر دیا گیا ہے. سندھ حکومت نے ان کی ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پر پبلک کر دی گئی ہیں آج یہ رپورٹس. اس حوالے سے مزید جانیں گے مظاہر سعید سے. جی مظاہر سعید بتائیے گا رپورٹس میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسا کہ حکومت سندھ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمام JITs ہیں وہ تینوں کی تینوں ان کو پبلک کر دیا جائے گا. ابھی اتنا لوڈ ہے ان کی ویب سائٹ پہ کہ ویب سائٹ جو ہے وہ ہینگ ہو چکی ہے اور ابھی عزیر بلوچ کی JIT وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ثانیہ بلدیہ ٹاؤن تھا اس کی JIT جو ہے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا. اور نثار مورائی کی JIT اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ نے اس کو آفیشیل ویب سائٹ جو ہے حکومت ہوم ڈپارٹمنٹ کی اس پہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے ویب سائٹ جو ہے ہینگ کر رہی ہے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی جو JIT رپورٹ ہے وہ تقریباً 37 صفحات پر مشتمل ہے اور رپورٹ میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ بات کی ہے کہ اس آگ کے حادثے کو جو ہے بہت کمزوری سے کی تفتیش کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیس کو کمزور بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی. پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے جو اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے 270 افراد جو ہیں اس خوفناک حادثے میں جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے تھے اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا تھا. پہلے بلدیہ ٹاؤن میں جو سیکٹر انچارج تھے متحدہ قوم، اگر لندن کے تو لندن کے تو وہ اصغر بیگ تھے. اصغر بیگ نے اپنا ہی ایک بندہ جو تھا بلدیہ فیکٹری میں لگوایا، جس کے بعد 1 کروڑ روپے جو ہے وہ بھتہ وصول کیا گیا تھا، جس کے بعد مزید بھتے کی رقم طلب کرنے کے لیے MKM کے 90 پہ KTC کے جو انچارج تھے حماد صدیقی انہوں نے سیکٹر انچارج اصغر بیگ کو ہٹا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمان بولا کو جو ہے وہاں کا سیکٹر انچارج. جی بہت شکریہ مظاہر سعید. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.